those who are well spoken in English language, they are considered better scholars as compared to those who are not well conversant in English language, but they might be conceptually far more better than many others who cannot communicate in English. So colonial mentality prevails in academia. So when we were identifying several other institutions, I also identified my institution or my community. आपने बाकी सारे किए, मैंने कहा इसको भी ऐड कर लेते हैं. Okay, now let's come to the issues. और ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेकंड स्टेप इस टॉपिक के हवाले से, दूसरे टॉपिक में हो सकता है कि वो फर्स्ट स्टेप हो जाए जो कि हम देखेंगे. व्हाट आर द इश्यूज एट हैंड, हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस टॉपिक पे. सो नाउ जब पॉलिटिकल एलीट की बात करते हैं, व्हाट डू यू फील कि व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू कॉलोनियल मेंटालिटी अमंग द पॉलिटिकल एलीट, जिसकी वजह से प्रोग्रेस इंपीड हो रही है. एंड रिमेंबर जब हमने लास्ट सेशन में बात की थी तो हमने कहा था पॉलिटिकल इंपेडिमेंट्स हैं. So पाकिस्तान की प्रोग्रेस पॉलिटिकली जो इंपीड हो रही है. So what's happening in the among the political elite or the political community because of colonial mentality? आपके जहन में कुछ आता है? Anything that has been inherited from the colonial past or where we can observe there is some sort of colonial mentality? कोई ऐसी बात? जी जी प्लीज. Elite, and this is connected to what we identified that as feudals are also part of discussion. When we look back at our past, in the early 20th century when Muslim League was established, Muslim League जो है वो feudals का एक ग्रुप थी और वो हम उस वक्त की elite थी. और अभी भी हम यही देखते हैं कि political elite comes from the social elite or the capitalist elite, and the feudals are also part of the politics. So this has been inherited from here. But उससे progress कैसे impede हो रही है? Progress ऐसे impede हो रही है that the real issues of the masses are not highlighted or might not be understood by the political elite. Then there is a serious problem. Serious problem क्या है political elite से? जी आपके जहन में कोई आ रहा है आइडिया? Political elite में एक serious problem ये भी हमें नजर आता है कि जिस तरह से colonial masters के टाइम में politics चल रही थी तो वो restricted थी कुछ families में. So dynastic politics in Pakistan is also impeding Pakistan's political progress, irrespective of any political party. हमने यहाँ पे किसी political party और आपने partisan होकर opinion भी नहीं देने हैं. जी जी प्लीज. हम evidence based चलेंगे तो हम ये बात नहीं करेंगे कि prime minister ये हो गया. Prime ministers may change in Pakistan, but if you can come after a little while, तो मैं ये discussion का फिर मैं sign कर दूँगा please. Thank you. So political elite in Pakistan जब आप बात करते हैं उसकी तो irrespective of the prime minister or the ruling party, we observe that there are certain specific families who always remain in power or they are in the power center and they determine and decide that who is going to rule Pakistan or who is going to govern Pakistan. किसी तरह से अभी कुछ institutions पे बात करनी है, आपने नाम लिया उनका, बट आपने पार्टीजन होके उन पे नहीं जाना कि एक को बता दिया और ऐसा लगे कि यू आर प्रोमोटिंग एनी वन पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा. आप इस तरह से नहीं चलते हैं, बट आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर विद इन सर्टेन फैमिलीज एंड हाउ दे मैनिपुलेट द एंटायर पावर स्ट्रक्चर. So we observe that if someone is in the Senate, next time he or she might be in the National Assembly, or maybe their brother or their daughter or their son. That means that the middle class does not get an opportunity to rise. And even if they get an opportunity, a very small number of percentage, even if they get an opportunity, they won't have that much of a say until and unless they become a part of that specific community. So our politics is quite different from the politics in the global north. ग्लोबल नॉर्थ आई होप आप अंडरस्टैंड करते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. सो डेवलप्ड वर्ल्ड की पॉलिटिक्स डिफरेंट है. इवन हम इंडिया के मुकाबले फिर जब देखते हैं तो ये है कि हमारे डेमोक्रेटिक नैरेटिव्स बड़े डिफरेंट हैं. एक और चीज भी आ सकती है, मतलब हम आई एम पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट आइडियाज, आई एम जस्ट प्रोपोजिंग अ फ्यू आइडियाज कि आपके जहन में हो कि एक और आइडिया ये भी हो सकता है कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है उसकी लेगेसी अगर हम देखें तो कॉलोनियल मास्टर्स ने मुस्लिम लीग को at the time of establishment support किया था. So our political elite also looks for support from somewhere else, maybe from any institution or maybe from any foreign power, but there are statements on record and there are courts decisions also available that there have been certain other institutions or certain other foreign forces who have been supporting or somehow
manipulating Pakistan's politics. This is also Pakistan's political legacy. So it means that indigenous problems do not get indigenous solutions in Pakistan. And political problems also do not get political solutions in Pakistan because there are some other forces who are dictating Pakistan's political spectrum. So consequence uska kya ho raha hai? Pakistan's political progress has been impeded. Pakistan's democracy is always a work in progress. So असल में तो पॉलिटिक्स सारी डेमोक्रेसी और गवर्नेंस और इन इश्यूज के गिर्द आके खत्म होती है। तो इनमें से कोई भी एक लेके यू मेक इट अ केस स्टडी एंड यू डिस्कस दैट। और ये अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बात कर रहे हैं। अगर टॉपिक पे अलग डिस्कशन हो, अभी आउटलाइन की ब्रेक के बाद में जब सेशन आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि हम आउटलाइंस को बड़े स्पेसिफिक तरीके से स्पेसिफिक केस स्टडीज, बट क्योंकि रफ वर्क ये आप 10 मिनट में करेंगे, बट मैं इस पे आपके साथ आधा घंटा 1 घंटा लगाऊंगा कि आप समझ सकें कि हम किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स ब्रेनस्टॉर्म की अप्लाई करें और साथ साथ टॉपिक भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हियर आपने एक इंस्टीट्यूशन का नाम लिया, मैंने नहीं लिया, और आपने मेंशन किया उस इंस्टीट्यूशन को कि हम उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। अब होता यह है कि जनरली जब भी हम बात करने लगते हैं तो एक और किस्म का नैरेटिव भी आता है कि सारा का सारा बर्डन इस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पे डाल दिया जाता है, जो कि गलत अप्रोच है। ये इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान का वाहिद ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, the only institution which works like an institution in Pakistan, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, और ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अच्छा, so the only institution, अब ये इंस्टीट्यूशन आपका सुपर इंस्टीट्यूशन है और उसकी सर्विसेज भी हैं, बट पॉलिटिकल मैनूवरिंग उसकी तरफ से हो रही है। बट उसकी कॉलोनियल मेंटालिटी से क्या लेगेसी, हमको कॉलोनाइजर से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो टॉपिक को देखना है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इमोशनल या फिर कोई पार्टिजन, या हो सकता है कि पॉपुलर नैरेटिव मीडिया, सोशल मीडिया पे या कन्वेंशनल बातें सुन के इसका नाम रख दिया हो। क्योंकि आप जिस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, एक तो आप जा रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में और आप स्टेट इंस्टीट्यूशन को ही ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो नाम है आपने ही मेंशन किया है उसी को ज्वाइन करने आप जा रहे हैं। बट उसका ये मतलब नहीं कि हम उन पर बात नहीं कर सकते हैं। बट एक होती है बात कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए, एक होती है आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक होती है पार्टीजन बात। किसी एजेंडा को नहीं लेके हमने चलना, न ऐसा लगना है कि हम किसी खास नैरेटिव के इन्फ्लुएंस में आके बात करें। नो, सो हाउ आर वी गोइंग टू डिस्कस दीज इंस्टीट्यूशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो लैंग्वेज है उसको जब आप डिस्कस कर रहे हैं, अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग से हट के आगे की बात, क्योंकि साथ ही कनेक्टेड है, आपकी लैंग्वेज ऐसी ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं एंड यू आर considering these institutions as outcast, or you are completely disowning them. No, they are your institutions. There are problems because there would be some errors or faults within the institutions, or errors committed by those who are part of those institutions. तो अब आप उनको जब डिस्कस करेंगे, so when you are discussing any specific institution, तो आप बात ये करेंगे एविडेंस के थ्रू करेंगे। कॉलोनियल लेगेसी कहाँ से आई है? When Pakistan gained its independence, this was the only organized institution that we inherited. Even the bureaucracy started operating in tents at Karachi. अशफाक अहमद साहब, जाविया जो किताब है, मैं जब स्कूल पढ़ता था टीवी पे तब वो प्रोग्राम की सूरत आता था। आई स्टिल रिमेंबर कि अशफाक अहमद सेड दैट कि कौन कहता है पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। He told in that specific program that in 1947 he had appeared in the papers of M.A. Urdu, and Pakistan did not have common pins to attach the extra sheets. तो वो कहते हैं कि हमने कीकर के कांटे का इस्तेमाल किया, और तब उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जुमला कहा था कि कीकर के कांटे से कॉमन पिन और कॉमन पिन से न्यूक्लियर वेपन तक का सफर तय किया है पाकिस्तान ने। लेकिन उस कीकर के कांटे के दौर में एक इंस्टीट्यूशन आपने इनहेरिट किया था, विच वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हुआ ये कि वी डिड नॉट मूव फॉरवर्ड। We had one organized institution, one super institution. We still have one super institution. That imbalance among institutions has created an institutional crisis in Pakistan. On one hand, we have one institution that is considered as savior for all the problems, or which has the panacea for all the evils, and all the other institutions rely on that specific institutions. For instance, अब देखिए, अब इसमें उसकी गलती तो नहीं है उस इंस्टीट्यूशन की, इसमें एक इंस्टीट्यूशनल
जो है, जो आपका वैक्यूम था उसको फिल करने जब वो आता है तो उसमें दोनों साइड पे प्रॉब्लम है. इफ ऑल द अदर इंस्टीट्यूशंस हैव नॉट प्रोग्रेस्ड एंड दे हैव फॉलन बैक टू द सेम ओल्ड colonial legacy, this super institution will also fall back on that colonial legacy that I am the super institution and I am going to dictate everything. तो वो तो वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा है. तो दोनों साइड पे आपने आइडेंटिफाई कर दिया प्रॉब्लम. तो फिर होता क्या है कि व्हेन देयर आर अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, there is one solution that we should call that specific institution. If we have any problem related to tourism in northern areas, masalan sayyah phas gaye, so we will call the same institution. If we have disaster management issues because of flood or earthquake, we will also call the same institution. अब बाकी institutions भी हैं. So इससे हुआ क्या कि institutional crisis create हुआ. So this one super institution gets the license to interfere into the affairs of other institutions. And that institutional crisis has impeded Pakistan's institutional progress. इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की बहुत सी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हम जो पैराग्राफ है, जो आइडिया ले रहे हैं, उसके ऊपर हमने एक आइडिया को लिया कि अगर उसको ऐसे में आप डिस्कस कर लें. आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो सिर्फ ये कर रहे होंगे कि ओके दिस इज द इंस्टीट्यूशन हु और व्हाट में आपने डिस्कस कर दिया इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस और बहुत वो आपने मेंशन कर दिया ताकि आप रफ वर्क के बाद फॉरन आउटलाइन की तरफ जा सकें. व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड क्या, मैं यहाँ पे जॉट डाउन भी थोड़ा कर दूं कि हमने क्या क्या लिया है. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और यहां हमने ले लिया इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस. जी, ब्यूरोक्रेसी, एंड यू आर गोइंग टू जॉइन ब्यूरोक्रेसी इंशाल्लाह. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द colonial mentality that prevails in the bureaucracy? Is there colonial mentality in the bureaucracy? Bureaucracy is the legacy of the imperial Raj. ब्रिटिश राज की लेगेसी है. ब्यूरोक्रेसी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वो लेगेसी कॉलोनियल मेंटालिटी या कॉलोनियल लेगेसी प्रिवेल कर रही है. इनफैक्ट इंडिया की ब्यूरोक्रेसी या उसकी रिक्रूटमेंट सिस्टम को थोड़ा उन्होंने चेंज किया. हमारा जो है काफी हद तक सिमिलर है टू दैट सेम ओल्ड पैटर्न. अब व्हेन द कॉलोनाइजर्स इंट्रोड्यूस्ड ब्यूरोक्रेसी इन द सबकॉन्टिनेंट, their main purpose was to control the enslaved nation. It was not a welfare model bureaucracy. So when majority of the CSS aspirants, they come here and discuss with me that why do they want to join bureaucracy, so वो जितनी भी सारी बातें करते हैं, at the core सारी बात ये होती है कि this is a status symbol. This also ensures that you get a social uplift and the social status is such that you get a much more respect in the society. अब जो बाकी कंट्रीज हैं, जो डेवलप वर्ल्ड है, उसमें ये नहीं है, बल्कि आप अपने स्पेसिफिक प्रोफेशन में भी ये कर सकते हैं. ये क्योंकि कॉलोनियल एक लेगेसी है कि दिस इज द रूलिंग एलीट. सो पब्लिक सर्वेंट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉलोनाइजर के टाइम में ये था कि दे यूज्ड टू कंट्रोल द एनस्लेव्ड नेशन और द मैसेज बिकॉज दे समहाउ were the instruments to maintain status quo. स्टेटस को की ब्यूरोक्रेसी कहा. जॉर्ज ऑरवेल ने जब रिजाइन किया था, और उसने, इफ यू हैव रेड जॉर्ज ऑरवेल, तो जॉर्ज ऑरवेल ने 5 साल ब्यूरोक्रेसी में सर्व करके ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में फिर रिजाइन करता है कि मैं इस तरह की क्रूअल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं रह सकता. तो वो जॉर्ज ऑरवेल का रेजिग्नेशन और ये सारी चीजों को अगर आप मैच करते हैं कि हमें समझ आता है कि अच्छा क्रूअल प्रैक्टिस, सो इट मींस दैट ब्यूरोक्रेसी डिड नॉट ऑपरेट लाइक दैट इन इंग्लैंड, जिस तरह से वो कॉलोनाइज्ड नेशंस के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे. Our bureaucracy is an outmoded system. उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि it is an anti-development model of bureaucracy. वो anti-development model bureaucracy क्या करती है कि it ensures a status quo, और वो status quo ensure करने की वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि आपके मुल्क में जो डेवलपमेंट है वो रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करती है. उससे क्रिएट होता है गवर्नेंस का क्राइसिस. The bureaucracy somehow lacks that problem solving approach, or maybe they have that problem solving approach, but because of that structure of the institution they do not have the sufficient capacity to resolve those issues. ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि वो कॉलोनियल लेगेसी चली आ रही है. उस वजह से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस क्राइसिस एग्रीवेट हो रहा है. सो ब्यूरोक्रेसी में जो कॉलोनियल मेंटालिटी है, क्योंकि वो एंटी डेवलपमेंट मॉडल ब्यूरोक्रेसी के मोड पर है, सो वी हैव अ गवर्नेंस क्राइसिस. So it impedes Pakistan progress. अब इन इंस्टीट्यूशंस में हमने बात की, ये अब वो बातें, ये ऐसी बातें नहीं है कि जो कि हम कन्वेंशनली सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए कर रहे हैं. हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि 3 हिस्से हैं टॉपिक के: कॉलोनियल मेंटालिटी,
देन द ऑब्स्टिकल्स और इम्पेडिमेंट्स, और फिर क्या कि अफेक्ट किस पे हो रहा है, पाकिस्तान की प्रोग्रेस पे। तो वो तीनों चीजें आप जिस लेयर में भी जा रहे हैं, आपने ब्रेनस्टॉर्म करते हुए डिसाइड कर लेनी है। वहां पे आप हो सकता है कुछ सेकंड में डिसाइड करें, बट यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। जुडिशरी, जुडिशरी में क्या इशू आपको नजर आता है पाकिस्तान में? अभी इनफैक्ट अभी जो बैच अपेयर हो रहे हैं उनके साथ मैंने पेंडेंसी ऑफ केसेस पे एक पूरा ऐसे डिस्कस किया है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इन पाकिस्तान, और हम जानते हैं कि देयर आर मेनी केसेस पेंडिंग इन पाकिस्तान, एंड द जजेस टू केसेस रेशो जो है हमारा, और पॉपुलेशन रेशो जो है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में काफी कम है, जजेस कम है। और रिसेंटली जब 26th अमेंडमेंट होती है तो ये इस इशू पर तब भी बात होती है, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सेपरेट करने की बात भी हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज द केसेस आर पेंडिंग, इट मींस जस्टिस इज डिलेड। व्हेन जस्टिस इज डिलेड, justice is denied. Justice delayed is justice denied. So our legal progress has been impeded because of colonial mentality से कैसे connected है? Because during the colonial era, the judiciary in the subcontinent was not operating like the judiciary in England. और वो अगर आप जिना की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं कायदे आजम की, तो आपको अंदाजा होता है कि उनके इंग्लैंड के केसेस और यहाँ के केसेस और चीजों में कितना डिफरेंस नजर आता है। And when he practiced there and when he practiced here, और जहाँ पर जजेस के साथ जो उनकी जो मुख्तलिफ मुकालमे हैं, if you have been a student of law तो आपने पढ़ा होगा उसको, उससे हमें ये पता लगता है कि here in the subcontinent there was a kind of a vicious circle where the ruling elite could get justice in appropriate time or maybe even quicker than the appropriate time, जो कि आज भी पाकिस्तान में प्रिवेल करता है। हायर कोर्ट्स नहीं, लोअर कोर्ट्स को हमने देखना है। देखिए हायर कोर्ट्स में हमेशा ज्यादातर जो है एलीट के इश्यूज जा रहे होते हैं। सो देयर वी हैव ऑब्जर्व्ड अ ट्रेंड दैट देयर केसेस डू नॉट रिमेन पेंडिंग, ईदर वे दे आर डिसाइडेड, बट इन द लोअर कोर्ट्स। और उसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो शायद प्रायोरिटी नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन एंड जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में शुरू से प्रायोरिटी नहीं रहा है, और उसकी भी लेगेसी ये रही है कि और हमने जो आर्मी की बात की, एक और चीज भी उससे कनेक्ट कर दूं आपको कि ड्यूरिंग द, और उसमें ये था कि ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे कॉलोनाइजर्स के टाइम में, जहां पे आज पाकिस्तान है, इट वाज लाइक अ बफर जोन बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल इंडिया। इफ यू हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, एनेक्सेशन ऑफ सिंध and annexation of NWFP. So after the failure in Afghan wars, the British wanted to ensure that central India was protected from the Afghan inroads. So the military presence in the northwestern part of India was far greater than the central part of India, या central India से। उसकी वजह ये थी कि वो एक बफर जोन पे थे। वैसे भी कॉलोनाइज रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस ज्यादा होती थी। अमृतसर मैसेकर जब आप पढ़ते हैं तो पंजाब ही साथ ही हमारे लाहौर के है, तो उसमें जनरल डायर जो कि उस वक्त कर्नल थे, ही हैड ऑर्डर टू ओपन फायर, देयर वाज नो एसपी और एएसपी स्टैंडिंग देयर। सो पुलिस के मैटर्स भी देख रही थी मिलिट्री। तो एक तरह से सिक्योरिटी जो थी वो प्राइमरी कंसर्न बना रहता था, लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरी कंसर्न रहता था। जस्टिस सिस्टम उतना बड़ा कंसर्न नहीं था। द सेम प्रिवेल्स इन पाकिस्तान। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जस्टिस डिले होने की वजह से एक सोशल अनरेस्ट भी क्रिएट होता है, और उसके अलावा जो है हमारे लिए लीगल इश्यूज भी बन रहे हैं। सो इट मींस दैट the ruling elite, या फिर ruling elite भी नहीं, even the wealthy or the powerful will always have their way, but the poor or the middle class will find it difficult to get justice in the institutions. तो उससे जो कि चर्चिल को भी आप कोट कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कहा था कि if the judiciary is functioning properly in England, we are bound to win the world war. कहाँ जुडिशरी का फंक्शन, और ये तब कहा था जबकि हिटलर डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 को। सो आप उससे भी कनेक्ट करके इन चीजों को कि इंग्लैंड में जुडिशरी ठीक चल रही थी, बट सब कॉन्टिनेंट में चीजें डिफरेंट थी, और वो विशियस सर्कल था फॉर द मैसेज। सेम प्रिवेल्स इन पाकिस्तान। कैपिटलिस्ट एलीट की आपने बात की, मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि फ्यूडल्स पे हमने बात कर दी, इसको हम इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज द कैपिटलिस्ट एलीट इज ऑल्सो समहाउ द फ्यूडल एलीट इन पाकिस्तान। दे ऑल्सो कंट्रोल, बिकॉज पाकिस्तान में एग्रेरियन इकोनॉमी की बात की जाती है, फिर एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हमारी जिस तरह शुगर इंडस्ट्रीज की बात अभी होती है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रूलिंग एलीट एंड पॉलिटिकल एलीट। बट इकोनॉमी की एक और साइड भी है। इंस्टीट्यूशंस की आपने बात की, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। रिसेंटली व्हेन वी वेंट इनटू द 9th bailout, we have observed a trend that even major economic decisions that were generally taken by the government quite independently, they are also dictated by the IMF.
when there are protests regarding tariff rates of electricity companies, the government says that we have entered into an agreement with the IMF. The State Bank of Pakistan, जो कि आज से कोई 4 साल पहले की बात है, there was a discussion that State Bank of Pakistan has somehow been colonized, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल जो था वो चेंज हुआ और उसकी वजह से करेंसी डिवैल्यूएशन हमारी जाती है, क्योंकि वो गलत प्रैक्टिस थी कि वो एक तरह से इन्यूमरेबल बोरोइंग हम कर लेते थे, गवर्नमेंट करती थी तो किसी तरह से करेंसी को वो स्टेबल रखते थे और वो पैग हो जाती थी करेंसी। बट अब आप उस तरह से कर नहीं सकते, बिकॉज IMF जो है इट has a very strict observation and it has laid down certain strict conditions over Pakistan. So before we borrow money from them, we have to implement their conditions, जो कि पहले नहीं था, because हमारा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा इस तरह से रहा। तो वो प्रॉब्लम IMF से ज्यादा हमारा रहा है कि we have not benefited much from IMF, क्योंकि इंडिया ने या तुर्किया ने या साउथ कोरिया ने IMF से बहुत बेनिफिट भी किया है। लेकिन अब हुआ ये है कि इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन है। Our economic policies are also dependent upon foreign institutions, much like to what happened with the Mughals. जब शाह आलम II को पेंशन देना शुरू की थी शायद, तो आप देखें they were kings but they were taking pension from the British Empire. और ये आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, when the British arrived in India, जहांगीर के दौर में, subcontinent controlled 25% of the world GDP. और वहां से जर्नी शुरू होती है और वो आते हैं एज ट्रेडर्स, और फिर होते होते, और इफ यू हैव स्टडीड दैट हिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो इट सब कॉन्टिनेंट जो है 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी का कंट्रोल करने वाला वो वहां से होकर इस तरह नीचे आता है, और किंग जो है पेंशन ले रहा था। बट देयर इकोनॉमिक डिसीजंस वो सारे के सारे डोमिनेटेड थे बाय देम। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया कि आपको थोड़ा क्लियर हो, बिकॉज दीज आर योर इनिशियल सेशंस के। आप जब चीजों को सोच रहे होते हैं तो आपकी बैकग्राउंड नॉलेज कैसे काम करती है, ये सब आपने छपा का फेयर में पढ़ा, ऑल दैट, सो इट कम्स इनटू योर माइंड और आप उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये कुछ इश्यूज आपने आइडेंटिफाई कर दिए। व्हेन हमें पता है प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन की हम बात कर रहे हैं, वेयर पाकिस्तान हमें टॉपिक ने क्लियर करके दे दिया है। वाई को भी हमने काफी हद तक बात कर ली, इस पर ये आपको क्लियर होता जा रहा है, तो आपने कुछ आइडेंटिफाई किया। लेकिन एक और बात कि वाई इट वुड बी ऑफ इंटरेस्ट फॉर अदर्स, मतलब फॉर इंस्टेंस वाई वुड द चाइनीज बी इंटरेस्टेड इन द कॉलोनियल मेंटालिटी प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। सो यू कैन डिस्कस हाउ द CPEC agreement was finalized, because the Chinese knew that who calls the shots, so along with the political elite they were also negotiating with the establishment of Pakistan. और फिर हाउ डिड दे कंट्रोल द गवादर पोर्ट, और फिर उसे आप एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं हामबन टोटा के साथ और मोम्बासा के साथ, और किस तरह से फिर जब ब्रिटिश आए थे दे आल्सो ट्राई टू कंट्रोल द पोर्ट्स। और फिर चाइनीज डेट ट्रैप जो है, पाकिस्तान इस वक्त जो है चाइनीज डेट ट्रैप में ज्यादा है एज कम्पेयर टू IMF डेट ट्रैप, बट IMF की रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती हैं, इसलिए जनरली कंट्रीज चाइनीज डेट ट्रैप को प्रेफर कर रहे हैं। इट हैज ऑल्सो बिकम अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर चाइना, क्योंकि उन्होंने वन बेल्ट वन रोड के लिए काफी ज्यादा लेंडिंग कर दी है, बट वो डेट ट्रैप जो है वो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के लिए, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते। और फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड नो दैट देयर इज कॉलोनियल मेंटालिटी प्रिवेलिंग अमंग द मैसेज ऑफ पाकिस्तान, कि व्हाइट मैन्स बर्डन या व्हाइट मैन सुप्रेमेसी की बात जब होती है तो हम सेवियर के तौर पे वेस्ट को देखते हैं। फॉर इंस्टेंस जब एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि US एड के, कि अमेरिका और पाकिस्तान के अवाम साथ साथ, तो उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि दे आर डायरेक्टली अप्रोचिंग द मैसेज, बिकॉज दे नो दैट देयर इज कॉलोनियल मेंटालिटी प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान, सो वी आर कमिंग टू असिस्ट यू एंड वी आर द सेवियर्स। तो वो फिर मैसेज को जो है अप्रोच करते हैं, अगर गवर्नमेंट के साथ उनकी रिलेशनशिप स्ट्रेंड है तो दे ट्राई टू बिल्ड अ काइंड ऑफ अ सेंटिमेंट इन अकॉर्डेंस विद द सेंटिमेंट और द मेंटालिटी दैट प्रिवेल्स विद इन अ कंट्री। सो उससे क्या होता है कि आपकी इंडिपेंडेंस या फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये इस टॉपिक को तो चले आपने देखा कि थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं, बट देन वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसको बड़ा हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को लेके कैसे चल रहे हैं।